बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 गया के तत्वाधान में होटल डेल्टा इंटरनेशनल में 3 दिवसीय कार्यशाला एनिमेशन एज अ टूल फॉर डिज़ाइनिंग ई रिसोर्सेज के विषय पर संपन्न हुआ। We are glad to have you here with us on this auspicious 3 days workshop on animation as a tool for design e-resources for primary teachers. On the outset, I would request to present a short, sir, please do the honor. I would also request a male participant and a female participant to join the lamp lighting ceremony. We are the torch bearers, remember. We have to go along. For this very exciting 3 days workshop here. So I feel honored to welcome each and every one of you in this workshop. First and foremost, I extend a very warm welcome to our chief guest, Professor Dr. Sunil Kumar, who has spared his valuable time for us for this inauguration. Process of transformation is taking place. Today we can see that whoever imagined that there is a process of being bureaucratic, next step being transformative, and then being charismatic. The process has started. If you feel among yourselves that you have gone one step forward from bureaucratic to transformative, then I welcome you once again. Then I congratulate you, appreciate you. But my expectation from you people, those who have come here, not for being a transformative one from bureaucratic, traditional, to just a transformative one, when you can say that yes, look, I am not an ordinary one, I am a changed one. My expectation is, or rather the organization's expectation is, that how can you be charismatic, how can you be those educationists. Giju Bhai Badeka was one teacher in Gujarat, if you have ever heard about him. He was a teacher, but he was not simply a teacher. The experimentations done in his class
is now being read. We need those charismatic teachers. But my dear friends, today is the day when we have to talk about the e-resources. Why e-resources? There are human resources, material resources, so many resources. The world is changing fast. Digital world. Everything digital, digital, digital. Can the nation builders like us, can the change agent of the society, can the followers of Chanakya be aloof to this changing world in the digital transformation? No, my dear friends, no. So digital world transformation would be there, and we have to take care right from the beginning, foundation of learner, foundation years, right from the foundation years, where we are the founders. Your challenge is to bridge the gap of digital divide. But when you yourself are the victim to this digital divide, how will you do that? So just think that whether you are yourself victim or you are the panacea to this digital divide. If you are going to be the panacea, then certainly we would like to welcome you once again here, and we would like to congratulate you to be on this arduous journey. So make yourself a digital literate, make your society digitally literate, and then only you will trod on the path of digital leadership. मैं कहाँ से बात शुरू करूं, इस बिंदु पर मैं कुछ उलझा हुआ हूं, क्योंकि आप लोगों को हमको सुनने का पहली बार मौका मिला है। जहाँ जहाँ बोलता हूँ मैं, लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ही आपने कहा, तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं ठीक ही बोलता हूँ। It is a great pleasure and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion. First of all, I start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Dr. Sunil Kumar, PG Department of Northern City, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. And I also express my heartfelt thanks to Srimati Soma Bose, Officiating Deputy Commissioner, KBS Patna, for his valuable contribution. We are grateful to our Reverend Assistant Commissioner Pranendu Mandal, sir, for his able guidance and encouragement. I thank him for his kindness, his interest, and continued support for arranging 3-day workshop on animation under guidance of KB number 2 Gaya. लूप में चलाएंगे तो that will give you a illusion that the object is moving. ये आप देखेंगे आगे when we will deal with SINFIN, आप देखेंगे कि एक 2D ऑब्जेक्ट है, वो हमने क्रिएट किया और उसका अलग अलग पोजीशन पे हमने पिक्चर्स क्रिएट किए और बाद में उसको टाइमलाइन पे हमने उस टाइम फ्रेम को रन जब किया तो वो एक वीडियो के जैसे बाउंसिंग बॉल के जैसे आ गया। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। अब एनिमेशन के जो पुराने तरीके हैं, पहले जब हम छोटे थे, कितने लोग केवीएस में से पढ़े हुए हैं? तो हमारे यहाँ ना क्या होता था, कभी कभी वो आते थे वो कागज के फूल बनाने वाले, हाँ, और वो प्लास्टिक शीट पे ना ब्लैक लाइंस बन के और एक बुक मिलती थी वहां पे, और आप उसको ऐसे ऐसे घुमाइए ना तो वो लगता था कि एनिमेटेड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, एज शोन हियर। सो दिस इज द मैनुअल एनिमेशन। ऑब्जेक्ट एक वहाँ पे क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हमको एनिमेशन करना होगा। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे किसी को मान लीजिए कि रोटेशन में देना है या आपको ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो ये अलग अलग टाइप से आप जो वहाँ पे देख रहे हैं सर्कल बना हुआ है, उस
उसके लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एनिमेशन आप चाहें, उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसी ऑब्जेक्ट को आपको उसका नाम ही होलो सर्कल है। बेसिक शेप्स के अंदर मिलेगा ये आपको। बेसिक शेप्स जो हेडिंग है उसके अंदर है। रिसेंटली यूज होंगी, फिर लाइंस होंगी, फिर रेक्टेंगल्स होंगे और फिर बेसिक शेप्स होगा। क्या सबको मिल गया है? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको मिल गया है तो, सो दैट आई नो कि हम आगे मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव। फ्रॉम बिगिनिंग कर लीजिए, स्लाइड शो में जाइए। इतना करने के बाद आपको स्लाइड शो में जाना है और स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग करिएगा तो सेकंड स्लाइड के बाद जो मूवमेंट होगा स्लाइड का, पहले जैसा हम लोग केवल एनिमेशन डालते थे तो ऐसा नहीं होता था, केवल एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड ओपन होता था। इसमें लग रहा है कि स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, केवल पिक्चर मूव कर रहा है बहुत स्मूथली। सबका 100% हो गया। एक आपको साउंड आई होगी कि आप देखिए यहाँ पे राइट साइड में रेंडर प्रोग्रेस 100% नजर आ रहा है। आ गया? सबका हो गया ना? राइट साइड रेंडर प्रोग्रेस 100%। नाउ क्लोज इट। 125 को सर चेंज कर लीजिए ना, एंड टाइम को आप चेंज कीजिए। टाइमिंग में जाइए, एंड टाइम को चेंज कीजिए, बंद कर दीजिए। आप सिंफिक्स मिनिमाइज कर दीजिए। आपने जहां अपनी फाइल सेव की होगी वहां ओपन, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे की थी, आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया एडिटिंग बॉक्स। किस किस की बॉल बाउंस हुई है? प्लीज रेज योर हैंड्स जिनकी बॉल जो है बाउंस हो गई है, GIF जिनका क्रिएट हुआ है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका जो जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, प्लस माइनस के आपको साइन किया गया है, तो आप यहाँ से इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। माइनस पे क्लिक करके छोटा और प्लस पे क्लिक करके बड़ा। तो मैं माइनस करके एक बार छोटा कर रहा हूँ। देखिए आपको उसका साइज थोड़ा छोटा करना है ना, तो आपने जो कंपार्टमेंट बनाए हैं उसके उस लेयर को सेलेक्ट कर लीजिए। और हम जहां से मूव करते थे तब हम लोग ग्रीन डॉट पर क्लिक करते थे, लेकिन आप लोग देखेंगे जो रेक्टेंगल बनकर आता है उसका जो टॉप राइट कॉर्नर है, टॉप राइट जो कॉर्नर है वहां पर एक ऑरेंज कलर का डॉट है। अभी तक सब लोगों ने जो भी बताया है, जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया है अपने एनिमेशन वाले क्लासेस में, ये थोड़ा सा उससे ऊपर है। जो आप बना चुके होंगे या बना लेंगे, उसको हम आगे कैसे यूटिलाइज करेंगे अपने जो हमारा TLM है उसको बनाने में, मतलब वीडियो कंटेंट कैसे बनाएंगे, इसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो आज के टाइम में अभी एक नया दौर है। इस नए दौर में आजकल मतलब टेक्नोलॉजी इतना आसान हो गया है कि आप आसानी से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एनिमेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ आपको ऐसे ही डाउनलोड हो जाता है। आपके पास जस्ट खाली इंटरनेट होना चाहिए। ये बात सबको पता है। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कितनी शक्ति। एनिमेशन देख सकते हैं, जनरेट हो गया है। समझ आया कैसे बना सकते हैं, है ना?
ओरिएंटेशन है, इसको लैंडस्केप मोड में करेंगे सबसे पहले। लैंडस्केप मोड में जाने के बाद साइज में जाएंगे और लेआउट पे जाएंगे और लेआउट में लैंडस्केप ओरिएंटेशन का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड आएगा। तो लैंडस्केप में जाएंगे, उसके बाद ये लेआउट पे रहेंगे, साइड में जाएंगे, लेटर है, ये टैबलॉइड है, लीगल है, तो टैबलॉइड रखेंगे 11 इंच बाई 17 इंच। साइज आपको सर्टिफिकेट किस साइज में जनरेट करना है? अगर आप लेटर साइज में कर रहे हैं, A4 साइज में कर रहे हैं, नॉर्मल प्रिंट निकालना है तो आप लेटर साइज में बना सकते हैं, A4 साइज में बना सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक जादुई पिटारा था NEP से रिलेटेड, तो ये लास्ट टॉपिक है जॉयफुल लर्निंग। ये आप लोग क्लास में करते हैं, सिर्फ आपको रिमाइंड करने के लिए करा रहे हैं, फिर उसको इस तरह वे में कीजिए। तो ये जब NEP आया था तो CBSE ने 2020 में हैंडबुक निकाला था जॉयफुल लर्निंग का। तो पहले ये जॉयफुल लर्निंग सिर्फ प्राइमरी में होता था, अब वो जो हैंडबुक निकाला था उसमें 1 to 8 तक जॉयफुल लर्निंग का है। तो हमें उसको फॉलो करना है। तो क्या क्या एक्टिविटी है जॉयफुल लर्निंग में, उसको मैंने कंपाइल किया है और उसी को प्रेजेंट यहाँ करने जा रहे हैं। अभी सिंपल है, जॉय क्या है आप लोग सब जानते हैं, ये खुशी, प्लेजर। Good evening, everyone. We are here to sing a song. केंद्रीय विद्यालय हमारा कितना अच्छा है, हंसते गाते खेल खेल में पढ़ते अच्छा है। केंद्रीय विद्यालय हमारा कितना अच्छा है, हंसते गाते खेल खेल में पढ़ते अच्छा है। पढ़ते इंग्लिश, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, हाउ आर यू। पढ़ते इंग्लिश, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, हाउ आर यू। केंद्रीय विद्यालय हमारा कितना अच्छा है, हंसते गाते खेल खेल में पढ़ते अच्छा है। 2 + 2 8 + 8 10 20 30 40 50। 2 + 2 8 + 8 10 20 30 40 50। मैथ्स भी करते फटाफट फटाफट फटाफट। केंद्रीय विद्यालय हमारा कितना अच्छा है, हंसते गाते खेल खेल में पढ़ते अच्छा है। छोटा पौधा बनता पेड़, तरह तरह के हरे हरे पेड़। छोटा पौधा बनता पेड़, तरह तरह के हरे हरे पेड़। फूल भी प्यारे, फल भी मीठे, कितनी बातें सीखे हम। फूल भी प्यारे, फल भी मीठे, कितनी बातें सीखे हम। केंद्रीय विद्यालय हमारा कितना अच्छा है, हंसते गाते खेल खेल में पढ़ते अच्छा है। ए आ ई ई का की सीखा सब कुछ है बाकी। ए आ ई ई का की सीखा सब है क्या बाकी। हिंदी, इंग्लिश और EVS सब चुके हैं हम। हिंदी, इंग्लिश और EVS पढ़ चुके हैं हम। केंद्रीय विद्यालय हमारा कितना अच्छा है, हंसते गाते खेल खेल में पढ़ते अच्छा है। कंप्यूटर के नए नए खेल, विंडो XP और ईमेल। कंप्यूटर के नए नए खेल, विंडो XP
और ई